वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप लोगों ने जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा था, जो वीडियो था, उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट एब्यूसिव रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप लोगों ने अपने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए, कमेंट भी दिए, और आप लोगों के सुझाव और कमेंट के आधार पर ही जो हमारा अगला पॉडकास्ट है वो है 18 से 25 वर्ष के जो लोग हैं, जो अपने घर को छोड़कर एक नई दुनिया में जाते हैं, चाहे वो कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफिस के माध्यम से हो, और धीरे धीरे वो एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं। और वो नए रिश्तों में जब जुड़ते हैं तो उन नए रिश्तों का वो कुछ एक मतलब आधार मान के आगे जीवन को चलाना चाहते हैं, और उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं अपने पार्टनर से, अपने जो लोग हैं जिनके साथ वो जुड़ रहे हैं, और उनके कई मापदंड भी होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या अगर उनके रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो उनसे वो कैसे बचे, या वो रिश्तों में खटास क्यों आई, वो हम जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले आप देखिए कुछ हमारे दोस्तों के भेजे हुए ये वीडियोस। Hey guys, I am Bhavya Reddy and today I am here to talk about my expectations from my future partner. So, I have very minimal expectations from my future partner. I am somewhere in between being conservative and modern, so it can be really confusing, and hence I expect my partner to be a little understanding and understand my point of view. I also do not like people who demotivate me because I consider myself to be a little ambitious. So, if he could be supportive and could tell me if this is right or wrong, then that would really be nice. I am also somebody who believes in giving space and having space because it really puts me in a better mental space. And I think I would give my partner the same amount of space that I expect. I am also somebody who is really into family and all of that. So, just a good person, somebody with good nature is all that I expect basically. Hello, this is Sriparna Mukherjee and I am 21. Though there is a long list for an ideal partner, some of them I put here are: he should be very loving, caring, understanding, obviously, the main thing, and should be trustworthy and also loyal to me. Thank you. Hello all, I am Rachna Mukherjee. I am 23 years old. I am here to talk about my expectations from my partner. So basically, I'm a PCOD patient and I frequently go through a lot of PMSing and mood swings. So in this case, I want a little understanding partner who understands what PMSing is, what mood swings are. So basically, this is one point which I would want. Another is a little bit of loyalty is needed in every kind of relationship, and these days, loyalty is a big question. So, loyalty is the second point, and thirdly, I would want my partner not to control me, but to tell what's right and wrong. Telling me right and wrong is fine, but not to control me or so show too much of possessiveness. That harms a relationship, and that leads to a lot of fight in future. So basically, these are my expectations from my partner. Thank you. Hi, my name is Gitanjali Das and I am a chef by profession. I teach how to make delicious breads and good looking pastries. I am 24 years old and very recently one of my dearest mentors have asked me a difficult but a beautiful question, that what kind of qualities am I looking forward in my future partner. It's a very difficult question, but still, I would tell you my desires in my partner, which I also have it in me. The first one is loyalty. Yes, it's a very big task card in today's generation and my generation.
I am loyal, so I want my partner to be loyal. Has to be trustworthy. Anywhere in the world he goes, I know that he belongs to me. There's nobody that can replace me in his life. Uh, that's one more thing that I want, that I can trust him through thick and thin. And yeah, I just don't want him to sit on my head and give me time, because I know both of our careers are very, very important for each of us. And because that's gonna give us bread, roti kapda makan, for us as well as our parents, because we'll be supporting our parents. So sir mat baithna to give me time, but if he gives me 10 minutes of his day, or probably if we are staying together, if we have one meal together and discuss about our days, how much we love each other, or what made us happy, that's enough. That's enough. That I'm a very pretty simple girl, and I believe in practical simple knowledge. And I just want it to be very, if I am in a relationship in today's date, I just want to be crystal clear with what you are, whom you are, what you do. It has to be very crystal clear. Otherwise, it's very difficult to be with somebody. That should not happen. That's all. Thank you. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एंड जैसे मैंने बताया था आपको, 18 से 25 वर्ष की जितने भी लोग हैं, वो अलग अलग तरीके की परेशानियों से भुगत रहे हैं, मानसिक तरीके से या रिश्तों के तरीके से। उन सब का जो है सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास डॉक्टर समर्पिता घोषनाथ। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज का जो क्वेश्चन है, बेसिकली जब हमने लास्ट, आपको पता होगा, जो हमने लास्ट सेशन किया था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था और एब्यूसिव रिलेशनशिप था, लोगों का मैम उसमें काफ़ी अच्छे विचार उन्होंने शेयर किए, काफ़ी और भी व्यूज़ शेयर किए। उन्होंने मैम ये भी वो चाहते हैं कि हम और एक्सप्लोर करें ऐसे रिश्तों को, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम वहाँ से शुरू करें, जैसे कि जो अभी बच्चे, या मैं कहूँगा कि जो अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे अब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं, हमें अच्छे बुरे का तो जितना भी जो मापदंड है वो तो पेरेंट्स बता देते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें दोस्त कैसे मिले, या हमारे जीवन जो चलाने के लिए, जीवन के साथ जो हमारे पार्टनर्स कैसे हों, उसमें हम लोग मैम बिल्कुल भी हम बांट नहीं सकते कि कैसे उसको आगे अच्छे पार्टनर दे सकें। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो सारा आज का पॉडकास्ट है वो 18 से 25 वर्षीय जो लोग हैं, जो अपने घर से जस्ट बाहर निकले, कॉलेज की दुनिया देख रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं, नए फील्ड में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनके ऊपर था कि 18 से 25 वर्षीय जो लोग हैं, जब वो रिश्तों में आते हैं तो मैम सबसे पहले तो किस तरह की परेशानियाँ वो फेस करते हैं, क्योंकि परेशानी होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं जी। तो वो किस तरह की परेशानियां वो फेस करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, और उन रिश्तों को फिर वो कैसे समन्वय कर सके, थोड़ा इसके बारे में जी। बिल्कुल, एक तो बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, कब पता भी नहीं चलता पेरेंट्स के लिए, एकदम से वो बाहर जाने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जो चूज़ करते हैं, जो चॉइस है उनकी, उस पर थोड़ा सा उनको और ज़्यादा गौर करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी इंसान सामने आ गया तो लोनलीनेस है या अकेलापन है, तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इसी रिलेशनशिप में हम लोग आगे बढ़ जाएं। बट वो थोड़ा सा सोच के आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान करके, थोड़ा सा देख ले, परख ले, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। यही मैं बताना चाहूँगी, उनको ये सजेशन देना चाहूँगी। और जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कैसे समझे कि क्या ठीक रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताती हूँ जिससे कि हमें पता चले कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जो कि है, पहला वो है आपका डिसरिस्पेक्ट दिखाना एक दूसरे के प्रति, और दूसरा अगर
वो इंसान लॉयल ना रहे। वो बोल रहा है लॉयल है या बोल रही है, लेकिन उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो उनका पता नहीं चल रहा, वो क्लियर नहीं है कि कैसे उनके साथ कैसे रिश्ते बन रहे हैं। सही बात। और अवॉइड करना, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जब आप नया, अब ये जो उम्र है 18 से 25, इसमें आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, नए कोर्सेज में जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें इस आड़ में या इस बहाने में अपने पार्टनर को टाइम ना देना और ये बताना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो वो भी मुझे लगता है कहीं एक गलत रिश्ते की निशानी है। क्योंकि 10 मिनट तो हर कोई निकाल ही सकता है कि वो आराम से ढंग से बात कर सके और सारे दिन की घटना और शेड्यूल का पता चल सके। और जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करना तो है ही कि अगर वो ऐसा हो रहा है आपके साथ कि हाँ वो कह रहे हैं कि दोस्ती की आड़ में या रिलेशनशिप की आड़ में ऐसा तो चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करें। मतलब आपके हिसाब से क्या है कि अपने रिलेशनशिप को, जब हम नए नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उसको अपने आप एक सेल्फ एनालिसिस भी धीरे धीरे करते रहे, बिल्कुल करते रहे। अच्छा मैम, जैसे अभी हमने आपने कुछ वीडियोस में आपने देखा भी होगा, उसमें पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी यूज करी हुई है जिसमें कि प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम उसी वजह से आप देखेंगे कि रिश्तों में कई बार खटास आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैम, अगर जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के हमारे पास चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके वजह से भी हमारे रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले मैम, तो उनको कैसे पहचानेंगे कि अब हमारे अंदर जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और वो हम कैसे उनके साथ आगे समझें, मतलब वो कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली जो ये आपने वीडियो में जो देखा, जो टर्मिनोलॉजी की बात की गई है, वो है PMS। PMS मैं आपको बता दूं, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जो कि अक्सर ही वुमेन में या लड़कियों में या ऐसे जो थोड़ी से एडल्ट भी होते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स आते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम है, जहाँ पे मूड स्विंग्स आना, ज़्यादा एंजाइटी रहना और थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं या लड़के हैं जिनको ये शायद नहीं पता हो कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में जाने से पहले वो ज़रूर ये पढ़ें, इसके बारे में जानें, नॉलेज रखें, तो वो हैंडल करने में उनको थोड़ा ज़्यादा सुविधा आएगी। ये PMS और IMS भी होता है, इरिटेबल मेन सिंड्रोम भी होता है। अच्छा। जिसके बारे में भी हमारे इतना ज़्यादा लोग बात नहीं करते, इतना ज़्यादा बताते नहीं हैं, जो कि सेम एज यूजुअल लड़कों में भी होता है, यंगस्टर्स में भी होता है, वैसे ही मिडिल एज में भी होता है, और में जो थोड़ी सी एज की तरफ जा रहे हैं उनमें भी होता है। तो वो कुछ दिन ऐसा होता है, या स्ट्रेस की वजह से, या डाइजेशन ठीक नहीं है, या आपका स्लीप स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसमें आ सकता है। तो ये जो अगर रिफ्लेक्शन अगर आपके रिलेशनशिप में पड़ रही है, तो उसको तब आप ये ना सोचे कि मेरा पार्टनर बदल गया है, या उसके नेचर में बहुत चेंजेस आ गए हैं, या वो अब शायद मेरे से प्यार नहीं करता, या वो हार्मनी नहीं है, तो वो ना समझे, उसको डील करने के लिए कोशिश करें। आपको उसके बारे में जानकारी लें, अपने आप को एजुकेट करें और देखें कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना दें और ज़्यादा ही ऐसी कड़वी बातें ना करें, तो उससे आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स आपको आने नहीं। अच्छा मैम, ये जो बुरे रिश्ते जो हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि रिलेशनशिप, मैं इसलिए बुरे रिश्ते बोल रहा हूँ बिकॉज एक आम इंसान इस चीज़ को समझ नहीं सकता है, क्योंकि अब जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप चीज़ को एनालिसिस कर सकती हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी है, इसके वजह से ये रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम, ये जो बुरे रिश्ते बेसिकली जो आ रहे हैं, ये मानसिक जो तनाव पैदा करते हैं, मैम ये कैसे पता लगेगा कि मेरे इस तरह के हमारे मानसिक तनाव हो सकते हैं? जी, एक तो जब टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैं खुल के ही बोलना चाहूँगी जिससे कि लोग और बच्चे जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझें कि रिलेशनशिप टॉक्सिक कब बनता है। टॉक्सिक मतलब क्या है? जब आपको ये लगने लगे कि ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ है मेरे रिलेशनशिप में जो मैं आगे तक नहीं जा सकता या जा सकती। तो जब आप ऐसा समझें, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मानसिक जो है वो तनाव बढ़ता है। उसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप ऐसा लगेगा कि आप किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, या आपको बात करना, फोन आ रहा है तो
बात करने में आपका मन नहीं है, या मम्मी डैडी या पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स आपको पूछ रहे हैं कि चलो यहाँ चलते हैं, आपको मन से लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो वो एक सिम्टम हो गया। और आपको भूख कम लग रही हो, वो एक सिम्टम हो गया। भूख क्यों कम लग रही है, क्या कुछ मानसिक दबाव या तनाव है जहाँ से आप जा रहे हैं, उसको एक बार चेक करें। और अगर नींद में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, या नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, या सारा दिन आपको एक ऐसा लग रहा है कि हैंगओवर है, मुझे और सोना चाहिए था, अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो एक बार रिलेशनशिप की ओर गौर करें और उसको ध्यान दें कि क्या वो तो नहीं है तनाव का कारण, या वो तो नहीं है जिससे कि आपका पूरा जो शेड्यूल है, पूरा जो आपके लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। करेक्ट, वो बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे मैम ने बताया कि देखिए मेन चीजें हम लोगों को पता नहीं होती है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे भूख है, फिर नींद नहीं है, ये लोग हम सोचते हैं कि तो रोज आममर्रा की जिंदगी है, हम उस पर तक गौर नहीं करते हैं। मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये सब चीजें, तभी हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे जाने कि हमारी ये परेशानियां हो रही है। अच्छा, हम ये जो तनाव तो अब लोगों के अंदर आ गए, अब जब परेशानी है तो उसका आपको सोल्यूशन भी देना ही पड़ेगा। तो आप बताइए इसका मैम, अब ये जब तनाव आ गए, अब इसे साइकोलॉजिकल तौर पे या साइकोथेरेपिस्ट होने के तौर पे आप सोल्यूशन क्या देंगे इसका, कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि बात करें, मिलके बात करें, वो तो है ही, और ऊपर से आपको जो पसंद नहीं आ रहा उसके बारे में आप कम्युनिकेट करें और बताएं अपने पार्टनर को कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और दूसरा, मेरे पास आने के बाद लोग ये बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, लेकिन मेन वो चीज़ वो पकड़ नहीं पाते, या वो उनका गौर नहीं जाता कि रिलेशनशिप की वजह से ये तो नहीं हो रहा है। करेक्ट, वो उनको नजरअंदाज कर देते हैं, वो नजरअंदाज ना करें, ठीक, उस पर गौर करें, उस पर क्या मेरा रिलेशनशिप जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक प्राइमरी फैक्टर है। हम लोग समझते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई होता है रिलेशनशिप में, सब कोई है, अपने प्रॉब्लम्स निपटा रहा है, जैसे तैसे लाइफ चल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप कम्युनिकेट करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। ध्यान मैं इसलिए कहूँगी कि अगर आप ठीक हैं तो आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अगर आप ही ठीक नहीं हैं, आप ही खाना पीना छोड़ रहे हैं, नींद आपको ठीक से नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मेरी तो ये हिदायत रहेगी कि अपने कोई भी करीबी प्रैक्टिशनर से जाके मिलें, प्रोफेशनल हेल्प लें। और अगर ये मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आपको सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, या ऐसा कोई फील आ रहा है कि मेरी अब ज़रूरत नहीं है, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर ये एक आ रहा है तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको सुने, उस पर गौर करें। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे मैम ने बताया, बिल्कुल वाजिब पॉइंट बताए हैं कि अगर आपको इस प्रकार का किसी तरह के भी कोई, अगर आपके अंदर जोर है या कोई प्रेशर है, उस प्रेशर से आप बाहर निकलिए, बात कीजिए, जैसे मैंने बताया, प्लस अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जानिए। मैम एक सबसे बड़ी हमने प्रॉब्लम्स जो अक्सर देखते हैं, आप भी काफ़ी पेशेंट से मिलते हैं, प्लस काफ़ी लोगों से भी मिलते हैं, उनके अंदर मैम क्या होता है, जैसे कुछ अगर रिलेशनशिप में कहीं एक खटास आई या ब्रेकअप होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सडनली फिर वो अपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, या हम आगे जो है कोई रिलेशनशिप में जाएंगे ही नहीं। तो मैम उससे कैसे वो बाहर निकले, क्योंकि ये तो लाइफ का एंड नहीं है, आपको तो आगे बढ़ना ही है, तो उससे कैसे बाहर निकले? देखिए, अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, आप समझ लीजिए साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, मैं बहुत ही जनरल एक एग्जांपल दूंगी जो लोगों को बात समझ में आती है। तो आप गिर जाते हैं, गिरने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, कभी कभार फ्रैक्चर भी हो जाती है, तो क्या आप उसके बाद साइकिल स्कूटी चलाना क्या छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। लाइफ को नॉर्मली लीड करना चाहते हैं, और वो सीखते हैं आप उससे कि हाँ मैं गिरा, मुझे चोट लगी, तो अब मुझे इसमें क्या और सावधानी बरतनी है। तो लाइफ साइकिल या रिलेशनशिप भी वही है। आप ये मत डरिए कि हाँ एक बार आपका रिश्ता टूट गया या आप गलत इंसान से मिले तो आपका ये एंड है, इसके बाद और कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, और आप डर जाते हैं रिलेशनशिप में पड़ने से। तो इसको थोड़ा सा वो अपने दिमाग से बाहर निकालिए, थोड़ा सा बड़ा सोचें, ये कि वो एक सीखने लायक मेरा एक पास्ट था, मैंने उससे सीखा और आगे बढ़े। बट हाँ, मैं ज़रूर इंस्ट्रक्शन दूंगी कि कम से कम 1 साल का वक्त लें अपने आप को हील करने के लिए, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करें, वो जगह बदले जिस जगह पे आप हैं,
और उन लोगों से दोबारा से ना मिले, जितनी ज़्यादा आप दूरी कर सकते हैं मेंटेन, वो मुझे लगता है ज़्यादा है। और एक और बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि जो एक्स है या जिससे मेरा रिश्ता टूट गया है उससे मैं दोस्ती कर सकती हूँ। दे कांट बी फ्रेंड्स। ओके, वो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो सर्कल में रहेंगे, वो फ्रेंड में रहेंगे, वो चीज़ें याद आएंगी दोबारा से वो कहीं ना कहीं घूमेंगे फिर जी, आपस में। दोबारा से वो सारी स्मृति, जो सारी मेमोरीज उन्होंने एक साथ बिताई है, वो कहीं ना कहीं वो पूरी रहेगी। तरह से हील होनी चाहिए पहले। तो वो फ्रेंडशिप के आड़ में वो चीज़ ना करे कि हाँ अंदर ही अंदर आपको वो चोट कर रही है या आपको पेन दे रही है, मतलब दो नावों में सवार ना हो, ना हो। क्लियर रहे रिश्तों हाँ, में। जहाँ पे वो आपके वो जो फ्रेंड है वो अगर आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए, जब तक आप हील नहीं हो जाते तब तक वहाँ जाना, वहाँ उन लोगों से मिलना या उनसे स्पेशली मिलना अवॉइड करें। और ज़्यादा कोशिश करें कि जब लास्ट में आपको जब पता चल गया है कि इस रिलेशनशिप में मैं नहीं रह पा रहा या रह पा रही हूँ, तो उसको बात करके आराम से एंड अप करें, रादर देन गाली गलौज, मारना पीटना, बहुत चीज़ों को बढ़ाना। क्योंकि आजकल सब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है सर, बिल्कुल। सब बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेटेड हैं, आसपास लोगों से बात करते हैं, आप इंटरनेट में देखते हैं, बैठते हैं। तो एक चीज़ को अगर हम लोग कामली एंड करें, स्मूथली एक एंड करें, तो वो इतना ज़्यादा ना दिमाग में हॉन्ट नहीं करे। दोस्तों, जैसे आपने मैम से अभी बताया कि अगर आपके रिश्ते आपको लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ पा रहे या किसी प्रकार से आगे नहीं जा पा रहे, तो अपने रिश्तों को आप धीरे धीरे अपने दोस्ती के तौर पे उसको आप धीरे धीरे खत्म कर दीजिए, क्योंकि जितना खींचेंगे उतनी और बढ़ता जाएगा। अच्छा मैम, मेरा जो आखिरी सवाल है आज का पॉडकास्ट का, आपने जैसे वीडियोस देखे, वीडियोस में हर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से। तो मैम उसमें उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि मतलब एक्सपेक्टेशंस हम रखें या ना रखें, अब उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है, मतलब वो जानना चाहता था। देखिए सर, अगर जितने ओपिनियन होंगे उनकी अपनी एक राय तो रहेगी डेफिनेटली, जितने लोग हैं उनकी अपनी ओपिनियन है डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से अगर वो अपने पार्टनर में ये ढूंढना चाहते हैं तो गलत क्या है? वो अगर ऐसा ढूंढना चाहते हैं तो उनको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि लोग हमेशा उसी तरफ झुकते हैं जो उनको उनके हिसाब से अगर एडजस्टेबल लगता है। तो वो पसंद नापसंद, मुझे ऐसा इंसान पसंद है, अगर उसमें वो खूबियां नजर आ रही है तो मैं डेफिनेटली वहाँ मूव करूँगी। और मैं ये सोचती हूँ कि पैरामीटर्स जो हैं हर रिलेशनशिप के, जो भी कुछ हो गया, रूल एक ही जैसा रहता है, जो कि ओवर पावरिंग, ज़्यादा प्रेशर देना किसी बात पे, या लॉयल ना रहना, या अब्यूज जो करना, जैसे मैंने कि आपको हर चीज़ों में बताया, तो वो इट रिमेन्स द सेम, वो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि रिलेशनशिप के ये रूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे ही हम चलते हैं। बाकी आपके ओपिनियन के हिसाब से आप जैसा आपको चूज करना है, आप पार्टनर वैसा ही ढूंढें, अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही जाएं, बट हाँ उतना भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि अगर चीज़ें ना हो तो आपको उससे दुख हो। करेक्ट। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे मैम ने बताया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा ही मत कीजिए, ज़्यादा करेंगे फिर टॉक्सिक हो जाएगा, जिसके हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो अपने रिश्तों को जितना आसान कर सकें, जितना मधुर कर सकें और जितनी इजीली ज़िंदगी जी सकें, वो ज़रूर आप आराम से उसको चलाइए और लाइफ में बहुत इंजॉय कीजिए, खुश रहें, प्रेशर मत करें, ज़िंदगी को खूब इंजॉय करें। और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट आप देखते रहें। मैम अगेन थैंक यू, आप आए और आपने आज एक्चुअली मतलब मेरे बहुत प्रेशर था कि 18 से 25 साल के बच्चों को पता नहीं होता कि जिंदगी कैसे हम निकालें, नए खिलाड़ी हैं। तो अब आपने बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को और रंगीन और सुखद और अच्छा कीजिएगा। अपने परिवार के साथ रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खूब इंजॉय कीजिएगा और अपने मन से सारे बोझ हटा दीजिएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमेशा डाइल्यूट कीजिए। थैंक यू।